and the way to prepare your question answers. So because we have very short time, so you guys have to prepare the most important questions and their answers, which I'm going to share with you. Anyways, अभी थोड़ी देर में आपको जो टॉपिक 2 है इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे, और आपने जिन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. यस, हाँ जी, ये वाले ठीक है जी. सो स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा नीचे. अच्छा, इसे माउस के साथ करना पड़ेगा. स्क्रीन चेंज करनी है तो मैं खुद भी कर सकता हूँ अगर आप करना चाहते हो. ऑल राइट. अच्छा जी, एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न, और क्वेश्चंस में हमारे पास the questions which are related with reasons for the partition of Bengal and reasons for its reversal. Let's see some questions. पहले हम questions को review कर लेते हैं. Questions की list आपके सामने है, और इसमें से जो questions आपने prepare करने हैं वो मैं आपके साथ अभी discuss करने जा रहा हूँ. So सबसे पहले हम discuss करते हैं reasons for the partition of Bengal. मैं repeat कर रहा हूँ, थोड़ा सा reinforce कर देता हूँ. देखिए, हमने last week history के week में we actually have done with section 1. Section 1 where you guys have done 7 topics. We have done with reasons for the decline of the Mughal Empire. वो topic 1 था. Topic 2 में we have done reasons for the arrival of the company. Topic 3 में we have done with the expansion of East India Company, and we have done all the wars, specifically Battle of Plassey, Buxar, Mysore, annexation of Sindh, annexation of Punjab. Topic 4 में we have done with War of Independence, and we have done reasons for the War of Independence and reasons for the failure, most importantly. And in topic 5, you guys have done with Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh movement. I'm talking about topic 5. And topic 6 mein, you guys have done with reformers. There are 5 religious reformers you guys have to prepare. Shah Wilullah, Sayyid Ahmad Shahid Brelvi, Haji Shariatullah, Mohsinuddin, and Titu Mir. Last but not the least, you guys have done with the languages. आप सब ने without any exception, कोई भी ऐसी हमारी क्लास नहीं है जिसमें हमने लैंग्वेजेस का टॉपिक ना किया. वो टॉपिक 7 है, और लैंग्वेजेस में यू गाइस हैव डन नंबर 1, व्हाई वाज उर्दू चोजन एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, बट वी हैव सीन दिस क्वेश्चन इन 2021. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन एज फार एज व्हाई वाज उर्दू चोजन एज अ नेशनल लैंग्वेज. आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट यू हैव टू रीड इट. मैंने हाईलाइट कर दिया था कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर करेंगे. और दूसरी जो कैटेगरी है एज फार एज द लैंग्वेजेस आर कंसर्न, that is related with how were the regional languages promoted in Pakistan. Now, this is important. It could be for 4 marks question. By the way, there are 4 regional languages like Punjabi, Sindhi, Baluchi, and Pashto. And these languages could come in comparison with Urdu language and vice versa. मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंग्वेजेस को लेकर आप लोगों ने या तो मेन 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं, लाइक लिटरेरी बोर्ड का आर्गुमेंट है, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, पोएट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ये आप सबके हैंडआउट्स पे लिखे हुए हैं. दीज आर द 5 पॉइंट्स एंड यू कैन रिपीट दीज आर्गुमेंट्स अंडर डिफरेंट लैंग्वेजेस. एनीवेज, तो ये 7 टॉपिक्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए थे. दैट मीन्स कि फॉर श्योर 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका प्रिपेयर हो गया है आउट ऑफ 75. सेक्शन 2 में यानी 7 टॉपिक से ऑनवर्ड अगर हम आए तो टॉपिक 8 आपको नजर आ रहा है, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल. देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तसल्ली से मेरी बात सुननी है. देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आता है रीजंस फॉर पार्टीशन. 1905 में अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल into eastern and western part. This is one of the questions. मैं आपके साथ जो questions की nature of the question है वो share कर देता हूँ. और दूसरा जो question है वो है reasons for reversal. Reasons for reversal में हम लोग discuss करते हैं reasons for reversal. उसमें जो the factors which remain responsible वो मैं आपके साथ अभी discuss करता हूँ. ठीक है, ये 1 है जी, 1911 है. और जो थर्ड कैटेगरी रिसेंटली हमें देखने को मिल रही है वो इन दोनों का कंपैरेटिव क्वेश्चन है. और कंपैरेटिव क्वेश्चन का मतलब है
रीजंस फॉर पार्टीशन वर मोर इंपॉर्टेंट देन दोज विच कॉज्ड इट्स रिवर्सल। इन दोनों को कॉम्बिनेशन है। रीजंस फॉर पार्टीशन वर मोर इंपॉर्टेंट देन दोज विच कॉज्ड इट्स रिवर्सल। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चंस जो कैटेगरी के, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इनके क्वेश्चन जरा गौर से आपने मेरे साथ गो थ्रू करने हैं। सबसे पहले हम रीजन फॉर पार्टीशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905? क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल वाज पार्टीशन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्सोलीट हो गया है, यानी रीजन फॉर पार्टीशन को लेकर या रीजन फॉर रिवर्सल को लेकर अब आपको कम से कम 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास कैटेगरी है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर explain why the British partition of Bengal in 1905. These are the 3 questions which are related with the partition of Bengal. ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी which are related with reasons for the reversal of the partition of Bengal. तो reasons for reversal of the partition of Bengal को लेके हमारे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, हाउ डिड हिंदूज अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड इन 1911? अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को गौर से देखें तो स्टेटमेंट डिफरेंट है, आंसर विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड? क्वेश्चन नंबर इज 5, व्हाई वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड इन 1911? अच्छा, इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन नंबर इज 7। अब क्वेश्चन 7 में प्लीज इसको जरा नोट करें, इसमें लिखा है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की बात हो रही है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911? तो हमने एक क्वेश्चन देखा है जिसमें जनरल स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश ने बंगाल की पार्टीशन को क्यों रिवर्स किया। एक स्टेटमेंट हमने देखी है जिसमें हिंदूज ने कैसे अपोज किया, और एक स्टेटमेंट हमने अभी देखी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों डिसाइड कर रही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया जाए। नाउ दीज आर द 3 डिफरेंट क्वेश्चंस विद द वेरी सेम आंसर, दैट मींस रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक ऐसी कैटेगरी डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। तो आपने थोड़ी सी, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट बाय द वे प्लीज फॉर अ मिनट, दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने शेयर हो रहा है, इसमें लिखा है रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वर मोर इंपॉर्टेंट देन दोज व्हिच कॉज्ड इट्स रिवर्सल, डू यू एग्री और डिसएग्री? सो मेक श्योर इस क्वेश्चन के आंसर में फर्स्ट 3 पैराग्राफ में you need to discuss reasons for the partition of Bengal. Remaining 3 paragraphs mein you need to discuss about reasons for reversal of the partition of Bengal, and then you need to discuss or you need to give your analysis कि partition के reason ज़्यादा important थी या reversal की reason ज़्यादा important थी। क्वेश्चन नंबर 9 की भी यही कैटेगरी है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और आजकल की सिचुएशन में थोड़ी सी जो क्वेश्चंस है ना उनको वो चेंज करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में शेयर करूं जरा गौर से आपने सुनना है। 12, हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? इस क्वेश्चन के आंसर में फर्स्ट 3 पैराग्राफ में रीजन फॉर पार्टीशन जिसकी बेसिस पे पार्टीशन हुई, और रिमेनिंग 3 पैराग्राफ्स में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हिंदुओं की तरफ से स्ट्रॉन्ग एजिटेशन था। यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की फॉर्म में, हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? यू हैव टू हैव द वेरी सेम फॉर्मेट, दैट मीन्स यू हैव टू हैव 3 रीजंस फॉर पार्टीशन which was successful enough and 3 reasons for the reversal. इस सारी क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर आपको रीजंस फॉर पार्टीशन पता हो और रीजंस फॉर रिवर्सल पता हो सेपरेटली, इंडिविजुअल क्वेश्चंस, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यू नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। मैं रिपीट कर देता हूं, जरा गौर से सुने। अगर आपको ये पता हो कि व्हाट द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 7 मार्क्स के लिए, और अगर आपको ये पता हो कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द
द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, या ये बताओ कि हाउ डिड हिंदूज अपोज इट, या ये बताओ कि व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिवर्स इट, फिर तो आप इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आपको पता है कि इसका सोल्यूशन आपके भाई ने आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, भाई आपके साथ है। मैं अब आपको इसके आंसर्स बताता हूँ, और आज के दिन, क्योंकि कल जब हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे फिजिकली, तो मैं इससे ऑनवर्ड्स चलूंगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, आंसर को प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगता। सो लेट्स सी, जिन क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में बेस्ट आंसर्स लिखे हुए हैं वो आपने प्रिपेयर करना है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ये इस साल आया था, जिसमें रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल में दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड, और दिल्ली दरबार में देयर वर टू मेजर डिसीजंस। ऑल राइट, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपने जो प्रिपेयर करना है वो है क्वेश्चन नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा, लेट मी सी द क्वेश्चंस। और बाय द वे इन सारे क्वेश्चंस को आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है जो आपको नज़र आ रहे हैं, और जिन क्वेश्चंस के टॉप पे लिखा होगा बेस्ट आंसर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है, लेट मी चेक द क्वेश्चन नंबर, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में। क्वेश्चन नंबर इज़ 4, दिस इज द बेस्ट आंसर। सो सबसे पहले वी नीड टू सी रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑल राइट, क्वेश्चन 4 को प्लीज़ आप हाईलाइट कर लें, अपने पास लिख लें, दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। एंड इसमें हुआ क्या था, लेट्स सी, इसमें हम हुआ ये है कि 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि इसका एरिया बंगाल का इज अनकंट्रोलेबल, दैट इज 1,89,000 स्क्वायर माइल्स। In addition to that, population was high enough, that was almost 10 times greater than the population of Britain, that is 95 million. In addition to that, यहाँ का जो टरेन है, टरेन जोग्राफी, इट वॉज सो हार्ड टू मैनेज इट बाय वन प्रोविंशियल गवर्नर, यानी कॉम्प्लिकेटेड टरेन में मार्शी एरियाज, डेंस जंगल्स, और इससे रिलेटेड जो आर्गुमेंट्स है यू नीड टू डिस्कस, और ह्यूज लैंड होने की वजह से 1,89,000 स्क्वायर माइल्स, और ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से, इस वास्टनेस की वजह से और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, वन प्रोविंशियल गवर्नर कुड नॉट मैनेज इट। तो एक तो आपने करना यह है कि एक पैराग्राफ में इन मल्टीपल रीजंस को आप डिस्कस करेंगे, नंबर 1। दूसरे पैराग्राफ में इफ यू कुड सी, फॉर इंस्टेंस, इफ यू टॉक अबाउट, ये पाकिस्तान है सपोज करें, और ये इंडिया है सपोज करें, और ये वाला जो पार्ट है ये बंगाल है। अब बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट है ये हिंदू मेजॉरिटी था, और जो ईस्टर्न पार्ट है ये मुस्लिम मेजॉरिटी है। जो वेस्टर्न पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी है ये हिंदी बोलते हैं, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ईस्टर्न पार्ट में मुसलमान थे और ये बंगाली बोलते हैं। तो एक तो ये कि दोनों के कल्चर में और सिविलाइजेशन में एंड लैंग्वेज में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको एक सेकंड ऑप्शन मिलती है, देयर वाज आल्सो द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन ऑफ द नेटिव्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो हिंदू हैं, एंड नेटिव्स ऑफ ईस्ट बंगाल जहां मुसलमान। और जो वेस्टर्न साइड के हिंदूज हैं, दे बिलीव दे वर सुपीरियर। तो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में सुपीरियरिटी का आर्गुमेंट आपको मिलता है। सो दीज वर द फैक्टर्स which provoked the British government to divide Bengal into western part and eastern part. ये है जी बाय द वे आपके पास दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो आपको नजर आ रहा है उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन देता है अपीजमेंट पॉलिसी,
99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टर्म को पहली दफा सुनते हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अपीजमेंट पॉलिसी। और इसी में हम एक और आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं फोर्थ लास्ट लाइन में, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखिए, अपीजमेंट पॉलिसी को ना समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज आप इसकी रूट लर्निंग कर ही लेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बंगाल की इस वक्त की सिचुएशन देखूं, इस वक्त की सिचुएशन को अगर हम रियलाइज करें, तो 1840 में हादी शरीयतुल्लाह की डेथ हो गई। 1831 में तीतू मीर बंगाल के फ्रीडम फाइटर थे, इनको मार दिया। 1860 में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे दादू मियां मोहसिनुद्दीन, ही डाइड इवेंचुअली। और इन मुस्लिम मूवमेंट्स को, मुस्लिम मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं, यानी फराइजी मूवमेंट और जहाद मूवमेंट, इनको क्रश किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों की मूवमेंट्स को क्रश किया, तो इवेंचुअली हिंदूज दे गॉट द पोजीशंस, और हिंदू बिकेम पावरफुल एनफ, और हिंदूज बिकेम सो मच पावरफुल दैट दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग द रिट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब नो, दिस इज द सिचुएशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता था कि भाई ये ट्रॉयका है, ये वर्ड मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ट्रॉयका ट्रायंगल से है। और एक चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि इंडिया में बिफोर 1947 देयर वर 3 मेजर सुपर पावर्स, या 3 मेन पावर्स। इसमें से एक पावर है ब्रिटिश, नंबर 1, द सेकंड इज मुस्लिम, एंड द थर्ड इज हिंदूज। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वाइव करना है, इफ दे वांटेड टू सर्वाइव इन इंडिया, दे हैड टू हैव द सपोर्ट ईदर फ्रॉम मुस्लिम्स और फ्रॉम हिंदूज, यानी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ रहना है। If Hindus wanted to they wanted to be in power, they had to have the support from Muslims or from the British government. And same with Muslims. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि 19 या 1860 से ऑनवर्ड जब इन्होंने मुस्लिम मूवमेंट्स को क्रश किया, तो हिंदुओं की इमर्जेंस हुई है, एंड हिंदूज बिकेम पावरफुल एनफ। Now the time has come to counter the superiority in the power of Hindus to British government की रिट। इसमें ये टर्म मैं रिट शेयर करूं, WRIT, रिट का मतलब होता है अथॉरिटी। ब्रिटिश के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, तो वंस अगेन दे डिसाइडेड टू सपोर्ट मुस्लिम्स। ट्रॉयका के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सुपरियॉरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल रिट के लिए, दे हैड टू सपोर्ट मुस्लिम्स। दिस इज कॉल्ड अपीजमेंट पॉलिसी। So this time they wanted to support the Muslims, and for the sake of Muslims, they decided to divide Bengal into eastern part and western part. Number 1. इसी में divide and rule policy डिस्कस होती है, और divide and rule policy में आपने एक वर्ड अंडरस्टैंड करना है, वो है बंगाली नेशनलिज्म। बंगाली नेशनलिज्म का मतलब ये है बेसिकली कि पूरे इंडिया में ना सिख नेशनलिज्म था, ना मराठी नेशनलिज्म था, ना मद्रासी नेशनलिज्म था, ना सिंधी नेशनलिज्म था एट दैट टाइम, ना पख्तून नेशनलिज्म था। देयर वाज ओनली वन नेशनलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिटी, और वो थी बंगाली नेशनलिज्म। बंगाली नेशनलिज्म वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिंदूज बेसिकली। सो irrespective of your religion, if you are Bengali, we have this sense of nationalism or sense of unity. This is called nationalism. अब point to be noted, Hindus ये कह रहे हैं कि British government basically wanted to break Bengali nationalism, और बंगाली ये कह रहा है कि हम हिंदू हों या मुसलमान हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी, इफ यू आर बंगाली, वी आर यूनाइटेड। ये बाय द वे हिंदूज का पॉइंट ऑफ व्यू। So the British government basically wanted to divide Bengali nationalism, not Hindu nationalism. So ये जो factors हैं, ये again this is very important question, और मैं आपको from the very first challenge कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इनसे अच्छे आंसर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपके पास हों, तो आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर करने हैं। टॉपिक 1 से शुरू कर दें, और इसके बाद भी जितने टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक 7 तक में आई हैव गिवन यू द बेस्ट आंसर्स। ठीक है,
तो ये है जी रीज़न फॉर द पार्टीशन। कोशिश करें कि आपको ये पूरा का पूरा आंसर प्रिपेयर हो, इसमें कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से पॉइंट्स हैं। सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर डिस्कस करते हैं, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, और कुछ पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं जिनको हम थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर यू नो दिस, यू हैव टू हैव 3 पॉइंट्स मिनिमम इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। 1 पेज आंसर होना चाहिए, आपके सामने गिवन है, एंड दिस इज द बेस्ट आंसर। तो क्लास खत्म होने के बाद आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। आपके साथ आई एम श्योर जो टॉपिक है वो शेयर हो गया है, नहीं शेयर हुआ तो कल आपको ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी, आपने हार्ड कॉपी में से इस क्वेश्चन को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। अब आते हैं हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है, यानी इसके अलावा जो कैटेगरी है वो है रीजंस फॉर द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, रीजन फॉर द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 2 दफ़ा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा, अब मैं आप में से किसी से भी अगर ये क्वेश्चन करूं कि हु स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट बाय द वे, तो आप में से मेजॉरिटी मुझे आंसर देंगे, आपके माइंड में जो अभी चल रहा होगा वो ये कि दिस स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी। ठीक है, आई एम श्योर आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन होगा, स्टार्टेड बाय गांधी, और आई एम टॉकिंग अबाउट 1905 टिल 1911। ये जो पीरियड है 1905 से 1911 तक, मेक श्योर इस पीरियड में गांधी साहब हिंदुस्तान में भी नहीं थे। दैट मीन्स 1905 ऑनवर्ड्स टू 1911 तक की स्वदेशी मूवमेंट मीन्स प्रो, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब होता है प्रो कंट्री मूवमेंट। अब स्वदेशी देश से है, देश का मतलब देश की बनी हुई प्रोडक्ट्स। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, सबसे पहले दैट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अगर आप में से किसी ने ये सोच रखा है कि ये गांधी ने लॉन्च की है स्वदेशी मूवमेंट, तो ही और शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज गांधी केम इनटू इंडिया फ्रॉम 1916 ऑनवर्ड्स। तो 1916 से पहले वो साउथ अफ्रीका में था, वहाँ क्या कर रहा था, वी आर नॉट कंसर्न, बट वी आर कंसर्न दिस दैट ही वाज नॉट देयर इन इंडिया। तो दिस स्वदेशी मूवमेंट पे 2 दफ़ा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी के अभी इसी टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अबाउट दिस स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, आप जरूर ये लिखें कि दिस वाज स्टार्टेड बाय तिलक बट इट वाज कंटिन्यूड बाय मिस्टर गांधी फ्रॉम 1919 ऑनवर्ड्स। तो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि आप इसको गांधी से कैसे रिलेट करेंगे, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब आप लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है, व्हाई डिड ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। ठीक है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिवर्स इट। अब जो रिवर्सल के जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन 10 इज द बेस्ट आंसर, दिस इज द बेस्ट आंसर। इसमें लिखा है हिंदुओं का जो वॉयलेंस और जो प्रोटेस्ट है, देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली वांटेड टू मेंटेन देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन देयर पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी बंगाल को डिवाइड करने की रीज़न ये थी कि हिंदुओं का जो लैंडलॉर्डिज्म और इकोनॉमिक जो पावर है उसका ब्रेकअप, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स उनको पॉलिटिकली थ्रेट कर रहे हैं इनकी हेजेमनी को और उनकी पॉलिटिकल रेट को, उसको ख़त्म करना है। अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को डिवाइड किया, पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुनिएगा, और स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई और इससे उनको इकोनॉमिक थ्रेट मिला है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ। और अगर पॉलिटिकल मूवमेंट यानी पॉलिटिकल रेट चैलेंज हुई है और मर्डर अटेम्प्ट स्टार्ट हुए हैं स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ, that means they both the objectives were not fulfilled, they both the objectives were not fulfilled। तो अब the time has come to reverse it, that's the point basically। यानी अगर आप पूरी पार्टीशन को एक 2 वर्ड्स में अंडरस्टैंड करें तो वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए, क्योंकि मुसलमानों को जब उन्होंने उनकी मूवमेंट्स को चैलेंज किया, जहाद मूवमेंट ख़त्म की थी तैमूर की और फ़राइज़ी मूवमेंट को ख़त्म किया है, तो इवेंचुअली देयर वाज इमर्जेंस ऑफ हिंदूज
अब हिंदुओं ने जो है वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन को सस्टेन करने ही नहीं दिया। तो पहला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसमें प्रोटेस्ट एंड वायलेंस की बात हो रही है, द पार्टीशन क्रिएटेड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ईस्ट बंगाल and elite Hindus of West Bengal, those who used to collect the taxes from the Muslims, their peasants, their farmers, now they lose their influence, right? Therefore, they rejected this idea and the protest began all over, not only in Punjab, not only in Bengal, but in the rest of the areas of India. This protest began. And the tide of anger rapidly spread in the rest of the areas. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इतने बड़े स्केल पर जो मास मूवमेंट चली है उसको काउंटर और मैनेज करना दैट बिकेम हार्ड एनफ। इन एडिशन टू दैट जो मोस्ट सीरियस कंसर्न्स थे वो है मर्डर अटेम्प्ट्स। इन एडिशन टू दैट आप बताते हैं कि मर्डर अटेम्प्ट्स आल्सो बिगैन एंड नॉट ओनली लॉर्ड मिंटो 1909 में जो गवर्नर जनरल बने, he was attacked by Hindu extremists. In addition to that, by the way, मैं right side पे लिख रहा हूँ, Lord Morley was also attacked, and he was attacked in Britain. And Muslim जो leaders हैं, like Nawab Salimullah Khan, Nawab Vikarul Mulk, they were also targeted. The Muslim leaders were also targeted, आपने इसमें ऐड कर लेना है, जैसे नवाब सलीमुल्लाह खान एंड नवाब वकारुल मुल्क। अब ये मर्डर जो थे बाय द वे ये कंट्रोल नहीं हो सके, नंबर वन। नंबर टू, ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। दिस इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। द हिंदूज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। अब यहां आपने ये वर्ड ऐड कर लेना है ताकि आपको याद रहे, दिस इज कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक। The massive campaign for the boycotting of the British courts began, and Hindus responded to this movement enthusiastically. And the foreign जो मैनचेस्टर से आते थे, foreign cloths were thrown और bonfires were arranged. And eventually the sale of the British good was dropped dramatically. अच्छा, इसके साथ फिर आप बताते हैं इन एडिशन टू दैट, एक तो होगा ना बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गॉड्स, इन एडिशन टू दैट देयर टाइटल्स वो ऑल्सो रिटर्न, ब्रिटिश टाइटल्स, जैसे सर सैयद अहमद खान में सर टाइटल है, सर डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल में सर टाइटल है, सर आगा खान में सर टाइटल है। और टाइटल का मतलब ये नहीं होता था जी मैंने कह दिया तो आप सर हैं, मतलब मैं कहूँ कि सर सैयद साहब आज सब सर हैं, ऐसा नहीं होता। टाइटल्स पर रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको बाय द वे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ओ लेवल्स करें तो जब आप ओ लेवल्स करेंगे और यूनिवर्सिटी में जाएंगे या ए लेवल्स करें यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप जाके वर्बली नहीं कहेंगे जी माने कि मैंने ए लेवल्स कर लिया, मैंने ओ लेवल्स कर लिया। आपको अपना रिजल्ट कार्ड दिखाना पड़ता है कि जी मेरे पास प्रूफ है और मैंने ये ओ लेवल्स कर लिया है। यू नो, पॉइंट टू बी नोटेड कि जब उस वक्त किसी को टाइटल मिलता था सर का तो साथ एक सर्टिफिकेट मिलता था कि ये हमने सर का टाइटल दिया है, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट जो है वो रिटर्न कर दिया गया जी हमें नहीं चाहिए, तो टाइटल्स को इस तरीके से रिटर्न किया गया। फिर उनकी ब्रिटिश जो जॉब्स थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनको बॉयकॉट कर दिया गया। जो लॉज थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट्स वर नॉट अटेंडेड बाय हिंदू लॉयर्स, लॉ बॉयकॉट हो गया। दे सॉल्ट एंड इवन शुगर वाज बॉयकॉटेड, their paper was boycotted, British paper, and Hindu students denied to attend British schools, और हिंदुओं को अपने स्कूल्स पहली दफ़ा बनाने पड़े। आपको मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पास पेपर्स में 2 क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जो एक्सक्लूसिवली स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। So if the question comes about the Swadeshi movement, for instance, and if you simply write about the boycotting of the British courts, उसको जितना मर्जी आप ड्रैग ऑन करें उसका 1 मार्क आपको मिलेगा। तो दैट इज वाई द स्वदेशी मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक की थी, ये बहुत एग्रेसिव थी, इट वॉज फुल ऑफ एग्रेशन, बिकॉज गांधी की जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसमें एग्रेशन नहीं था, दैट वॉज सिंपली ऑल अबाउट टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स and non-violent protest must be started.
यू नो समथिंग, इसमें एग्रेशन था। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ तिलक वाली एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ गांधी वाली, कि एक में एग्रेशन है और एक में एग्रेशन नहीं है। तो आप लोगों ने ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, प्लीज यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू राइट इट, जिसमें टाइटल्स वर रिटर्न्ड, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स के साथ साथ देयर जॉब्स वर बॉयकॉटेड, ब्रिटिश लॉज वर बॉयकॉटेड, देयर सॉल्ट बॉयकॉटेड, शुगर बॉयकॉटेड, पेपर बॉयकॉटेड, स्कूल्स बॉयकॉटेड, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तीसरी जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, और जितना वो ऑप्रेस कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, उतना सप्रेस, जितना सप्रेस कर रहे हैं उतना ऑप्रेस हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ब्रिटिश टुक सेवरल मेजर्स टू ब्रिंग द सिचुएशन एंड देयर न्यूज़पेपर्स जो थे वो बैन कर दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। जो हिंदू न्यूज़पेपर्स थे, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे, उनको भी इम्प्रिजन किया गया, और इसके अलावा जो मोस्ट प्रोमिनेंट उस वक्त के लीडर्स थे, उनको भी दे वो ऑल सेंट बिहाइंड द बार्स। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये है तिलक, एंड ही वाज अरेस्टेड इन जून 1908। सो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिटिश मेजर्स इन विच दे वर नॉट सक्सेसफुल। और इन सारी रीजंस की बेसिस पे अब लॉर्ड मिंटो साहब, लॉर्ड मॉर्ले, दे वर अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। लॉर्ड मिंटो के बाद 1911 में आगे लॉर्ड हार्डिंग, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई कि जी अब हमसे तो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या करें। तो फिर दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, किंग जॉर्ज V इंडिया आए, एंड ही टुक टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसका मैं आपको बाय द वे जवाब देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन 11 सिर्फ आपको बाय द वे बताने के लिए कि दिस इज ऑल अबाउट दैट स्वदेशी मूवमेंट विच स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक 1905 से 1911 की स्वदेशी मूवमेंट में। आपने तिलक की स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस करना है। तो बता मैं आपको बेसिकली ये रहा था कि जब इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, तो फिर किंग जॉर्ज V जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, किंग जॉर्ज V जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम इसको रिवर्स करेंगे। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी पिक्चर पास पेपर में आई हुई है, और उस दिल्ली दरबार में दो बड़े डिसीजन लिए गए। एक, नंबर 1 कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया जाए। नंबर 2, कैपिटल मस्ट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये है जी बाय द वे उस पिक्चर जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसको हम अभी दोबारा रिलेट करते हैं। ये जो आपको अभी नजर आ रहा है, इसको आपने गो थ्रू करना है। ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मेक श्योर कि जब भी सक्सेस वाला पार्ट आपको दिया जाएगा, इस सक्सेस वाले पार्ट में आज के दिन मैंने पहले 15 मिनट में रीजन द पार्टीशन आपको बताई हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर और पॉपुलेशन है। इसमें लैंग्वेज इशू हमने डिस्कस किए हैं और सिविलाइजेशन की बात हो रही है, और स्पेसिफिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात हुई है। इनको आप फर्स्ट 3 पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। 4th पैराग्राफ में आपने डिस्कस करना है अबाउट मर्डर अटेम्प्ट्स, यानी रिवर्सल वाले बातें। 5th पैराग्राफ में आप स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। 6th पैराग्राफ में ब्रिटिश मेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें तिलक वाज सेंट बिहाइंड द बार्स, एंड देन यू हैव टू गिव योर एनालिसिस। और एनालिसिस में हम बताते हैं रीजंस फॉर द पार्टीशन, रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर वो क्वेश्चन नंबर 8 आता है तो बल्कि याद है, मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन 8 बाद में देख लीजिएगा, रीजंस फॉर रिवर्सल वर मोर इम्पॉर्टेंट, और इसमें जस्टिफिकेशन में आप देते हैं बिकॉज इट वाज इवेंचुअली रिवर्स्ड। और इस वाले क्वेश्चन जो आपको भी नजर आ रहा है 15 में, द पार्टीशन वाज नॉट सक्सेसफुल, और इसमें भी वही आप जस्टिफिकेशन देते हैं क्योंकि इवेंचुअली इसको रिवर्स कर दिया गया। अगर ये रिवर्स ना होती, ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्टेन कर लेते इस प्रेशर को
और इसको रिवर्स ना करते तो फिर हम कहते जी पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सक्सेसफुल। एनीवेज, ये जो आंसर है आपको इसी पर्सपेक्टिव में मिलेगा। दैट्स अ कंप्लीट आंसर क्वेश्चन 15 को। जिस तरीके से मैंने अभी समरी आपके साथ डिस्कस की है, इसी जो राइट साइड पे लिखी हुई है, इसी को आपने अपने आंसर में एक दफ़ा डिटेल में गो थ्रू करके यू हैव टू गिव योर एनालिसिस, और ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसकी रिवर्सल है। और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि रोज़ा है आपके भाई का भी, और आपका भाई सुबह से पढ़ा रहा है। कल हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड्स, वो है शिमला डेपुटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम। सो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।